اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہفتے کی ہوروسکوپی ہے ان 4 برجوں کی: اسد، سنبلہ، میزان اور عقرب، لیو، ورگو، لیبرا اینڈ سکارپیو۔ ہاؤ دے پاس دس ویک ٹیل 5 فروری ٹیل 11 فروری 2025۔ یہ ہوروسکوپی ایک ہفتے کی ہے، آج 5 سے لے کر 11 جنوری 2025 کیسا رہے گا ان کا یہ ہفتہ۔ یہ ہے سنبلہ برج کا زیچہ زندگی، اور یہ ہے اس کا 2025 کا زیچہ، اور یہ ہے اس کی یہ ڈیٹیل، اور یہ ہے اس کی ڈیٹیل، یہ اس کے اچھے برے دن۔ یہ زیچہ ایک انسان کی جو نا پوری بایو ہسٹری ہوتا ہے، اس کا ایسے سمجھ لو کہ زندگی کا ایک کارڈ بھرا ہوا ہے جو وہ خود دیکھ سکتا ہے، یعنی تنظر فی نفس، اپنے اندر دیکھو۔ یہ زیچہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کا بنوا لو تاکہ آگے جا کر ان کے کام آئے، ان کے پیشے جو انہوں نے اختیار کرنے ہوتے ہیں، ان کے کلر جو وہ استعمال کریں، فصلیں جو کاشت کریں، کاروبار جو کریں، اور کس سے شادی کریں، کس سے نہ کریں، اور کون دوست ہے کون دشمن، یہ ٹوٹل زیچہ بتا دیتا ہے اور پوری لائف کا سرکل بتا دیتا ہے۔ تو یہ بندے کو بنوانا چاہیے۔ یہ 2025 کا بھی زیچہ ہے اور زیچہ زندگی بھی ہے۔ اگر کوئی بنوانا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے 0301 74 24 655 پر۔ تو چلیے چلتے ہیں اسد برج کی طرف۔ اسد برج کی شخصیت حیثیت اس بار متاثر ہے۔ وہ یہ پورا ہفتہ جو ہے نا ناپسندیدہ لوگوں اور ناپسندیدہ جگہوں پر نہ جائیں۔ لوگ خامخواہ الزام لگائیں گے اور کوئی بدنامی ان کے گلے لگ سکتی ہے، لیکن ان کو دولت کی آمد رہے گی۔ پیسہ ان کے پاس مختلف ذرائع سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کو گری پڑی مفت دولت بھی مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے دوست و احباب ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کاروباری فائدے بھی ان کو مل رہے ہیں، لیکن کاروباری فائدوں کی جگہ ان کو بڑے مقابلے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ ہاتھ سے دشمن وہ کچھ بگاڑنے کی کوشش میں ہے اسد برج والوں کو، لیکن کوئی بگاڑ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی احتیاط کریں۔ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی، یہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ اچھا موقع ہے ان سے فائدہ اٹھانے کا۔ اگر ان کے پاس کوئی کام اٹکے ہوئے ہوں حق ہمسائیوں کے پاس، تو یہ اب نکلا ماننے کا بہترین وقت ہے۔ اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفر بھی اسد برج والوں کے کامیاب ہیں۔ کاروبار ٹاپ پر جائے گا، نیا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں، لیکن کاروباری اعتبار کسی پر نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے ارد گرد کچھ کھاؤ پکاؤ اور جو ہے نا بے وفا دوست موجود ہیں۔ آپ نے کسی کو ادھار بھی کاروباری نہیں دینی، چیک اسٹامپ بھی، لیکن کاروبار آپ جس سطح کا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھ بھال کر آپ کافی آگے چلتے نظر آتے ہیں۔ خاندان میں جو انتشار تھا اب وہ اتحاد میں آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن خاندان کے کچھ چند شرارتی لوگ پھر بھی اس میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صبر تحمل سے اس معاملے کو نپٹانا۔ باقی رہی بات، اگر کوئی آپ زمین جائیداد اسد برج والے خریدنا چاہتے ہیں تو بڑی شوق سے خریدیں، اللہ تعالیٰ اس میں بڑی رحمت فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں۔ اگر بیرون ملک جانا چاہیں تو آرام سے جا سکتے ہیں۔ ماں کی صحت درست ہوگی۔ قانونی الجھنوں میں الجھے تھے تو یہ صحیح ہوں گے، اور جو ہے نا ان کے اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے بچے بھی پاس ہو جائیں گے۔ ویزا اقامہ اگر لینا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا وقت آپ کو نہیں ملے گا۔ ان کی زندگی پر چھائے موت کے بادل اسد برج کے ہٹ جائیں گے۔ مالی معاہدات طے پا جائیں گے۔ وراثت کی جائیداد سے فائدہ ہوگا۔ انشورنس کلیم کے مقدمات آپ کے حق میں ہوں گے۔ ڈوبی رقم واپس ہوگی، اور قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، لیکن قرضہ کی وصولی ادائیگی کے دوران بد دماغ ہو سکتے ہیں اسد برج والے۔ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے جیسے رقم ان کی ڈوب سکتی ہے۔ اولاد کا اور جوان اولاد کے مسائل حل ہوں گے، لیکن جوان اولاد پر نظر رکھیں، وہ انٹرنیٹ یا اس طرف کوئی بے راہ نہ ہو جائیں۔ محبت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن آپ محبت کے ساتھ جذباتی ہو سکتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ آپ پرائز بانڈ لاٹری لیں تو آپ کا پرائز بانڈ یا کوئی لاٹری لگ سکتی ہے۔
इसके बाद आपके मर्ज से आपको निजात मिलेगी। असल बुर्ज वालों को मर्ज जितना भी गहरा होना, अब अच्छा मुआलज मिलने से आपको मर्ज से निजात मिलेगी। आपको मुलाजमती तरक्की मिल सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे। इसमें इस्सार, कुर्बानी, जज्बा, मोहब्बत रहेगी। नई शादी करने वाले जोड़े, शादी उनकी जो तय थी, निकाह, मंगनी, शादी तय हो जाएगी। चाहे कोई जितनी शैतानगी करे, कामयाब नहीं रहेगा। सियासी, समाजी, इक़्तिसादी तकरीबात में इजाफा होगा और उसमें आप नज़र आते हैं। इसके बाद आपके खुफिया दुश्मन वो दफ़ा रहेंगे, क्योंकि आज 5 है, 6 से लेकर 8 तक तो शर्फ लगा रहेगा। फिर आगे आपने देख कर चलना है। आगे जो है 6-8 के बाद जो ना खुफिया दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। बैरून मुल्क से आपको वतन की राह दिखा सकते हैं, अखराजात बढ़ सकते हैं, माली के केस रीओपन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज सुंबला की तरफ। कैसा रहेगा बुर्ज सुंबला? फरवरी 5 फरवरी से 11 फरवरी तक इनकी शख्सियत टॉप पर रहेगी, कारोबार टॉप पर रहेगा। कारोबार और शख्सियत दोनों हाई लेवल 100 लेवल पर रहेंगे। तो इनको चाहिए कि अगर शख्सियत के कोई काम अटके हैं लोगों के साथ तो वो भी कर लें, अगर कारोबारी कोई मामला अटके हैं तो वो भी कर लें, और जो है ना हसूली वसूली अदायगी जल्दी कर लें और कारोबारी फैसले ठोक कर करें, कारोबारियाँ लगाएं और इंशाअल्लाह कामयाब नजर आते हैं। लेकिन गलत माल की खरीदारी आपको जेल की हवा दिखा सकती है। आपको आमद ही आमद है और मुख्तलिफ ज़राए आमद से आपको पैसे आते हुए नजर आते हैं। मुफ्त दौलत भी मिल सकती है, प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी लग सकती है। इसके अलावा बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। सुंबला बुर्ज वाले, बैरून मुल्क अगर आपका ख्वाब है तो ये पूरा करने का ये हफ्ता बड़ा बेहतरीन है। मार्केट से दुरुस्त होगी, कानूनी उलझनों से निकल आओगे, आला तलीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के पास हो जाएंगे। इसके बाद आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार आपका साथ देंगे और बहन भाई भी आपका साथ देंगे। इसके अलावा अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़रों से निजात मिलेगी। हादसे का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरा नहीं। ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे और आपके विरासत के केस आपके हक में होंगे। विरासत की जायदाद से फ़ायदा होगा। आपके कर्ज की हसूली वसूली अदायगी आसान होगी और आपके माली मुआहदात भी तय पा सकते हैं और आपके बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी और ज़िंदगी पर छाए मौत के साए ख़त्म होंगे। आपको जो अनजाना खौफ था वो भी ख़त्म होगा। ख़ानदान फले फूलेगा, इसमें इत्तेफाक आएगा। लेकिन फिर भी कुछ हरामी लोग जो आग लगाए थे, जिसने पहले अब भी हुई आग लगाते रहेंगे। लेकिन आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना, इनको अक्ल से सुलझाना। आप ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो ख़रीदें, बहुत अच्छा वक्त है। जायदाद में पैसा इन्वेस्ट करें। बाग लगाना चाहते हैं लगाएं, फसल लगाना चाहते हैं लगाएं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे। दूसरी शादी करने वाले भी कामयाब, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी उनकी निगाह में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक नजर आते हैं। सुंबला बुर्ज वाले औलाद को और जवान औलाद के मसाइल हल होंगे। जच्चा बच्चा को कोई खतरा नहीं। बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज सकता है। मर्ज से निजात मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी और अगर कोई मुलाजमत में बंदिश थी तो वह अपना तरक्की में वो ख़त्म होगी। दोस्तों अब आज उनसे ख़तरा है, लेकिन 6 से लेकर 8 तक वो आपका साथ देंगे। कारोबारी फ़ायदे भी आपको मिलेंगे और आपके ख्वाहिशात दिल भी पूरी होंगी। खुफिया दुश्मन जल भुन रहे हैं, साजिश पे साजिश कर रहे हैं। सुंबला बुर्ज वाले होशियार रहो, वो आपको कोई ना कोई कानूनी चक्कर या कोई केस मुकदमा करेंगे। अगर आप बैरून मुल्क हैं तो आपको वतन वापस की राह दिखाएंगे, इसलिए इनसे एहतियात करो। अखराजात बढ़ जाएंगे, आप पर साया जादू के असरात भी आ सकते हैं। सर दर्द और किडनी का मसला या यरकान जिगर का मसला है तो फौरन किसी आमिल से रजू करो, डॉक्टर से रजू ना करो, वो भी पढ़े लिखे आमिल से। दूसरी बात रह गई कि आप चलते हैं मीज़ान बुर्ज की तरफ। मीज़ान बुर्ज की शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी। इनके केस मुकदमात जो है ना वो ख़त्म होंगे। बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी। जो खौफ अनजाना है उससे भी निजात मिलेगी। सर का दर्द और किडनी का दर्द या जोड़ों का दर्द था उससे भी निजात मिलेगी। इसके अलावा आपकी शख्सियत हैसियत भी बुलंद रहेगी। आपका जो कर्जा किसी ने देना था वो भी आपको मिलेगा। अपनी इसकी आपके कर्जा की हसूली वसूली भी आसान होगी। इंशाअल्लाह आपका कर्जा मिलता नजर आता है। आपके
मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे, मियाँ बीवी में राजीनामा होगा, दूसरी शादी करने वाले भी कामयाब नजर आते हैं और निकाह मंगनी शादी आपकी होती नजर आती है। दौलत आपके पास आती हुई नजर आती है, मुख्तलिफ ज़राए आमद से आपको दौलत ही दौलत आती नजर आती है। बीमारी से आपको निजात मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी। अगर बीमार हैं तो आपको शफा रूहानी जिस्मानी बीमारियों से निजात मिलेगी। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ दे रहे हैं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में निजात मिलेगी और आपके हादसा इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। आपका खानदान फलता फूलता नजर आता है। ज़मीन जायदाद में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आपकी सवारी, आप नई सवारी खरीदना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको मिलती हुई नजर आती है। औलाद के मसाइल हल होंगे, बे औलाद को औलाद होगी, मंगनी शादी तय होगी। मोहब्बत आपका साथ दे रही है। वो जिनकी मंगनी शादी ताहाल बंदिश का शिकार थी अब होती हुई नजर आती हैं। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं और बैरून मुल्क मफादात आपको डबल मिलेंगे। आईटी का कारोबार और आईटी से मुंसलिक लोग तो बहुत फायदा कमाएंगे। कानूनी उलझनें थी खत्म होंगी। आला तरीन मुकाबले का इंतजाम देने वाले लड़के पास हो जाएंगे। आपके खुफिया दुश्मन दफा होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, आपके माली के केस बंद हो जाएंगे, बैरून मुल्क इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। आपके दोस्त व अहबाब इस बात से जल भुन रहे हैं, आपके फसली बटेरे दोस्त हैं, इन पर एतबार न करना वरना ये आपको सख्त धोखा देने के चक्कर में हैं। जैसे आपको मार भी सकते हैं, आपके खिलाफ केस मुकदमा ला सकते हैं, कारोबारी फायदे रोक सकते हैं, पैसे लेकर भाग सकते हैं। आपकी ख्वाहिशात दिल भी रुकावट का शिकार हो सकती है। मिजान बुर्ज वालों का कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन आज का दिन खतरा है इनके कारोबार को। 6, 7, 8 तक कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, फिर 9, 10, 11 में जो ना वो बहुत एहतियात करें, कारोबारी नुकसान आ सकते हैं। चलिए चलते हैं अकरब बुर्ज की तरफ। अकरब बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत टॉप पर रहेगी। ये लोगों से मोहब्बत, लोग इनसे मोहब्बत करते नजर आते हैं। मर्द से निजात मिलेगी और मुलाजमती तरक्की मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो नौकरी भी इनको मिल सकती है। दौलत आती हुई नजर आती है, पैसे मुफ्त दौलत भी इनके हाथ लग सकती है। औलाद के मसाइल भी इनके हल हो सकते हैं। जवान औलाद के मसाइल भी इनके हल होंगे और इनके प्राइल बॉन्ड सट्ठा जुआनदारा के काम में भी इनको कामयाबी है। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार इनका साथ दे रहे हैं। बहन भाई भी आपके साथ खड़े हैं और हक हमसाय भी आपके साथ खड़े हैं। अगर इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो, राजीनामा हो या कोई काम निकालना हो, या बेहतरीन टाइम है। आपका खानदान फले फूलेगा और ज़मीन जायदाद के मामलात आपके हल होंगे। जो केस मुकदमा ज़मीन के वो आपके हक में होंगे। अगर कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो भी ये अच्छा वक्त है। मकान खरीदना चाहते हैं अच्छा वक्त है। मकान से दूसरे मकान में जाना चाहते हैं तो अच्छा वक्त है। कोई सवारी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त है। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे। शराकती कारोबारी मुआहदा तय पाएंगे और शराकती कारोबार में आपको फ़ायदा होगा। कोई दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा तलाक की नौबत तक अब हल होता हुआ नजर आता है। खुफिया दुश्मन आपके दफा होंगे और इमिग्रेशन के मसाइल आपके हल होंगे। अखराजात कंट्रोल होंगे। मादी के केस जो आपका पीछा कर रहे थे अब वो हल होते हुए नजर आते हैं। आपके दोस्त आपके साथ खड़े हैं, कारोबारी फायदे दे रहे हैं और ख्वाहिशात दिल आपकी पूरी करने में मदद करेंगे। आपकी जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो खौफ था अब खत्म होगा और दिलेर होकर आप चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर जो है ना, इसके अलावा आप कि जो बैरून मुल्क जाने के रास्ते आज बंद हैं, कल 6 से लेकर 8 तक खुले रहेंगे और माँ की सेहत भी फिर दुरुस्त होगी। कानूनी पेचीदगी से निकल जाओगे। 6 से लेकर 8 तक आप मुकाबले के इम्तिहान देने वाले, आला तालीम हासिल करने वाले भी कामयाब हैं। तो ये थे हमारी प्रेडिक्शन जो हमने आपको दी 4 बुर्जों की। आपका कारोबार ज़बरदस्त रहेगा। अकरब बुर्ज वालों का ज़बरदस्त कारोबार में ज़बरदस्त कारोबार में नुकसान का खतरा है। अकरब बुर्ज वालों को कारोबार में नुकसान का खतरा है, इसलिए सोच समझ कर कारोबारी फैसले करें। अगर कारोबारी फैसले गलत किए तो आपको जेल की हवा भी हो सकती है और कारोबारी कंगले नवाब हो सकते हो। इसलिए ना किसी को चेक दो, ना स्टाम्प दो, ना किसी के साथ वादा मुआहदा करो। तो ये थी प्रेडिक्शन 4 बुर्जों की। आखिर में मैं आपको कहूँगा कि आप चाहते हैं कि ये जो रिश्ते हैं आप तक ना आए और जो बरकत है ये डबल होकर मिले, तो 5 सदके दो। अल सदका तरदल बला, अल सदका तफी गज़ा बलरब, अल सदका तदफ़ा अल बला।
دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، ان کو ملا کر تھوڑا تھوڑا صدقہ کر دیا کرو، چونٹی مکڑوں کو اتنا ہی ڈال دو۔ پھر ہفتہ وار وظائف پڑھو، ہفتہ یا غنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 بار، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 541 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا کریم، بحق اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد، ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرما میرے مولا، رسول اللہ کے صدقے جو مسافر ان کو منزل نصیب عطا فرما، رسول اللہ کے صدقے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، رسول اللہ کے صدقے جن کی اولاد نافرما بردار ہیں ان کو فرما بردار بنا، رسول اللہ کے صدقے جو میاں بیوی لڑائی جھگڑے میں ان کی صلح عطا فرما، فاطمہ و علی کے صدقے اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔